બેઝિકલી પાલનપુર થી જ છું અને અત્યારે સ્ટેજ ઉપર આવવા માટે એક મોકો આપ્યો એવું એક મોકા આપવા માટે અત્યારે જેમના સાથે કભીથી ખભો મિલાઈને હું કામ કરું છું એવું હાર્મોની ગ્રુપ માટે એકવાર જબરદસ્ત તાલી દીધી એને હાર્મોની ગ્રુપમાં રહેવાથી જ કરોડપતિ બનાય એ સાબિત કરીને હું બતાવ્યું બાકી અધર તો કદાચ હું બીજા કોઈ ગ્રુપમાં હોત તો આજે આટલો મારો વિકાસ ના થયો કેમ કે એજ્યુકેશન નોર્મલ એમાં એ બધા જ મારા કરતા વધારે ભણેલા હશો એજ્યુકેશન સાંભળવું હોય 10 થી વધારે ભણ્યો નહીં હાથથી નીચે ભણ્યો નહીં અને એક ક્લાસની અંદર વધારે નહીં પણ 4 ક્લાસની અંદર મિનિમમ રિપીટ હોય 4 ક્લાસમાં 4 ક્લાસમાં 4 વખત રિપીટ એટલે જેટલું ગાહરું ભણ્યા પણ ગાહરું ભણે કરોડપતિ બને યસ અને અત્યારે ટેકનિકલ હાર્મોનિકના ઓલ એનટીસી આરટીસી સીટીસી આઈટીસી અને ડાયમંડ માટે એક જબરદસ્ત તાલી દીધી અત્યારે કંપની મેનેજમેન્ટ પણ એટલું સારું છે કે કંપની મેનેજમેન્ટના જોડે રહેવાથી ઘણું બધું શીખ્યો છું અને ઘણું બધું આ બિઝનેસની અંદર પૈસા પણ કમાયો છું સાંભળવું છે કેટલા ઈચ્છા કે હો આના એટલે કઈ દઉં આમ તો મારી સ્પીચ લેવી મિનિમમ 200 રૂપિયા થાય એનટીસી પેલા હો હતા સીટીસી માં બહી થાય કે ભાવ વધે લેવલમાં તો ખાસ કરીને મિત્રો આ બિઝનેસની અંદર ચાલવાનું કારણ એક જ છે મારું કે ગરીબ પરિસ્થિતિમાંથી આવતો એકદમ ગરીબ પરિસ્થિતિ સ્કૂલમાં ભણતા ક્યારે પણ શિક્ષકે કીધેલું કે પ્રવાસ તમારે રાખવાનો છે હું પ્રવાસમાં નામ કેન્સલ જ કરાવતો ક્યારે લખાવતો જ નહીં કારણ કે ફાધર જોડે પૈસા હોય નહીં એટલે માગવા કેવી રીતના યસ કરો એટલે જવાનો મોકો તો મળે જ નહીં પણ એક સમયે મારા બ્રધરે મને બિઝનેસ આપ્યો ડીએસ પટેલ સરે અને પ્રકાશ પટેલ સર મારા ગુરુ છે આ બંને ગુરુને હું માનતો ગયો એમને જેટલું કીધું એટલું કરતો ગયો અત્યારે બિઝનેસની અંદર તમારી સામે સિટીઝ બની પહેલા મારા બ્રેકડાઉનની વાત કરું તો ડાયમંડ અંદર હીરાઘસવાનું કામકાજ કરતો હતો ઘરે ફાધર જોડે ખેતીવાડી હતી એટલે ખેતીવાડી પણ કરતો હતો પશુપાલન બી રાખતો હતો કેટલા લોકો ખેડૂત છે અહીંયા ઓકે તમે અત્યારે ખેતી કરો છો તમને ખબર જ છે કે કેવી રીતના ખેતી થાય યસ કે નો ખેતીમાં ક્યારે સપના પૂરા થાય નહીં ખરા ઉનાળા પણ બાજરી વાઢવી પડે યસ કે નો ખરા ઉનાળા પણ બળદ હાંકવા પડે ખેતરમાં યસ કે નો ઓર હાંકવું પડે યસ કે નો આ બધું હાકેલું છે તબેલામાં જઈને સોના નખવું પડે યસ કે નો આ બધું કરેલું છે કામ એમને એમ સ્ટેજ પર નથી આવ્યો પણ બધું કરતા કરતા આ બિઝનેસની અંદર આવ્યો ને શરૂઆત કરી 0 થી અને શરૂઆતના બેઝ ઉપર એક બાઇક લઈને શરૂઆત કરી બાઇકમાં ઘણી ફેરા પેટ્રોલના પૈસા ના હોય પેટ્રોલ પંપે જઈએ એટલે 20-25 રૂપિયા પેટ્રોલ નાખતા પેટ્રોલ ના હોય પૈસા ના હોય પણ એ બધી સિચ્યુએશન ધ્યાનમાં રાખીને બિઝનેસને ફૂલ ટાઈમ કેરિયર તરીકે અપનાયો એનું કારણ અત્યારે એ જ છે હર મહિને
2 લાખ થી 2.5 લાખ રૂપિયા. અત્યારે મારી ટીમ પાર્ટનર અત્યારે અહીંયા હાજર જ છે, જેવું પરમાર સર ડબલ આઈડી આર્ટિસ્ટ. જ્યારે એમને કોઈ બિઝનેસમાં ઇન્વોલ્વ કર્યા, ફોર્મ સાઇન અપ કર્યું અને એમનું ફોર્મ સવારમાં 7 વાગે ભર્યું. કેટલા વાગે? 7 વાગે હોટલ ઉપર. કોઈને ભર્યું અત્યારે આમાંથી? કોઈને ભર્યું હોય કોણ મને? સવારમાં 7 વાગે. સવારમાં 7 વાગે બધા લોકો શું કરે? શું કરે? ઘરે ચા પીવે, નાસ્તો કરે, બ્રશ કરે, નાવા જાય. યસ કરું તો અમે કેટલા વાગે ઉઠ્યા છે આ બધું કરવા માટે? સવારમાં 4 વાગે. કેટલા વાગે? 4 વાગે ફોર્મ સાઇન અપ કર્યું. ફોર્મ સાઇન અપ કરી ઘરે આવ્યો. બીજા દિવસે 2-4 મિત્રો મળ્યા, એમને એવી વાત કરી કે તું સાહેબને લાયા તમે કોઈ નહીં કરી, જેવું સાહેબે કોઈ નહીં કરી. આજે ડબલ આઈડી આરટીસી બનાવી બેઠા છે. યસ કે નો? મારી પાલનપુરની ટીમ અત્યારે ડીએસ પટેલની ટીમ પણ અહીંયા હાજર છે. ડીએસ ઠાકોર માટે જબરજસ્ત તાળી થઈ જાય, કારણ કે મારી ટીમ જ બધી મારી ટીમ. યસ કે નો? હાર્મોની ગ્રુપ એટલે મારું ગ્રુપ છે. યસ કે નો? સાહેબ આ ગ્રુપની અંદર ટોળાની અંદર આવીને ઉભા રહો. તમારે કરોડપતિ નહીં બનવું હોય પણ એક વાવાઝોડાના કારણે તમે કરોડપતિ થઈને બહાર નીકળો. આ હકીકત છે મિત્રો. બાકી તો હાથ તરફ ભણેલાનું શું માર્કેટમાં ગાંધીનગરમાં હું લ્યો આવે આ 5 કિલોનો હાર કોણ પહેરાવે ગાંધીનગરમાં? કોઈ પહેરાવે? અને એ ગુલાબનો મતલબ મળતો વાળા તો હાર હું તળાવે, પણ ગુલાબનો હાર ક્યારે મળે? કઈક કંપનીની અંદર કઈક સિસ્ટમ હે. યસ કે નો? આ પહેલું સન્માન સિટીનું મારું. હમણે ઘરે પ્રોગ્રામ કર્યો, ઘરની અંદર 3000 પબ્લિકની અંદર, ગામની અંદર મને વરઘોડું કાઢ્યું મર્સિડીઝમાં. એ તો કે લોકોના પૈસા ગાડીઓ લઈને ફરે. ભાઈ લોકો હે તો પૈસા, પૈસા હે તો લોકો હે. યસ કે નો? લોકોના પૈસા ધંધો થાય નહીં યાર ભાઈ. અધર પીપલ માં નહીં, પીપલ એફર્ટ. યસ કે નો? લોકો જો ખબર હે, ગોમવાળા ખબર હે, એમને પૂછવાની જરૂર નહીં. એમને એક લાડવો ખાવાનું આમંત્રણ આવ્યું નતું, બાજુવાળા ઘરવાળાને નતું આવ્યું. એ જ કરા કે લોકોના પૈસા લઈને ફરે તો લોકો જ ખાઈને તમે ખરા કહો. યસ કે નો? તો ખાસ કરીને મિત્રો આ બિઝનેસ ની અંદર ઘણું બધું કમાણો છું. અત્યારે પાલનપુરની અંદર 80 લાખ બદલો અત્યારે બની રહ્યો છે. 5મા મહિનાનું વાસ્તુ પૂજન છે. આ બિઝનેસ થકી અત્યારે ગાડી લઈને ફરું છું ડ્રાઈવર સાથે. કઈક આપણને બોર્ડની ખબર પડે એટલે ડ્રાઈવર લાવી દીધો. હાલ બાર શાફત કરે ગાડી. બસ સિસ્ટમની તાકાત. નેક્સ્ટ 2023 ની અંદર આઈટીસી બનું છું અને નેક્સ્ટ મારો ગોલ છે મર્સિડીઝ બેન્ઝ. નેક્સ્ટ મારો ગોલ છે બીજો આઈડી છે મારો એનટીસી બને. અત્યારે આઈટીસી માં છે, એ મારા બેબીના નામ પર છે અને આઈટીસી બનાવી અને 18 વર્ષના મેરેજ થાય એ ટાઈમે એને કોડ ટ્રાન્સફર આપવાનો. અત્યારે ગોલ્ડ પરચેઝ કરી 1 જ વર્ષની અંદર અત્યારે મારી જોડે ગોલ્ડ હાજર હોય 15 તોલા ગોલ્ડ અત્યારે પરચેઝ કરી ચૂક્યો. બીજા નંબરમાં ટાર્ગેટ છે કે આવનારા 1 થી 2 વર્ષની અંદર મારા બેબી માટે આ બિઝનેસ થકી 1 કિલો સોનું પરચેઝ કરવાનો ટાર્ગેટ છે મારો. તમે બી આવો, તમારા સપના સાકાર કરો. એ સાથે જય હિન્દ, જય મહારાષ્ટ્ર. જબરદસ્ત તાળી થઈ ગયો સર માટે. ઓકે, હવે આજના ટ્રેનિંગ સેશનના સેકન્ડ સેશન માટે સરને ઇન્વાઇટ કરીશું. યસ યા નો? આપણા જોશ જનૂન સાથે હેપી ટુ વેલકમ ડબલ આઈડી ડાયમંડ સર. હેપી સેટિંગ સર. जो लोग नहीं किया थैंक यू, जो लोग नहीं किया प्लीज कीजिए, क्योंकि आपका ही बेनिफिट के लिए मैं आपको क्विकली ये वेबसाइट दिखाऊंगा फ्रेंड्स. ये वेबसाइट दिखाऊंगा और इसमें
आने वाले दिन में टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग और भी बहुत सारे कम से कम एनटीसी बनना पड़ेगा। तो आप डिसाइड करो आपको कितना जल्दी एनटीसी बन के इधर आना है। एकदम ऊपर जाओ। अबाउट अस में जाएगा तो हार्मनी ग्रुप का हर एक लीडर का आपको डिटेल से मालूम पड़ जाएगा। उन लोग का बैकग्राउंड क्या है, क्या अचीवमेंट किया, कौन सा लेवल पे है उन लोग, और हर एक बंदे का सक्सेस स्टोरी है। जैसे सर ने अभी एक्सपीरियंस शेयरिंग किया, ऐसा जितना भी लोग एनटीसी बने हैं वो सारे लोग कभी ना कभी तो डिस्ट्रीब्यूटर ही थे ना। यस सब जयंती भैया भी कभी ना कभी तो डिस्ट्रीब्यूटर ही थे। ओके, नटू भाई भी कभी ना कभी तो डिस्ट्रीब्यूटर ही थे, हम भी कभी डिस्ट्रीब्यूटर ही थे। कैसे उन लोग ने प्रोग्रेस किया, उन लोग का एक्सपीरियंस शेयरिंग सब कुछ आप सुन सकते हैं, तो आप लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे मैं बताया ना आप लोग को संघ शरणम गच्छामि, क्योंकि हर एक लीडर को पर्सनली सुनना पॉसिबल नहीं है आप लोग को, लेकिन आप जब भी चाहते हैं ये वेबसाइट के अंदर जाके उन लोग का एक्सपीरियंस शेयरिंग आप लोग सुन सकते हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग में अपने आप से आप बात करने को चालू करेगा, ये कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ, बस आपका उद्धार चालू हो गया। कंपनी में जाएगा तो फॉर्म कैसा रजिस्ट्रेशन करने का, ऑनलाइन कैसा प्रोडक्ट मंगाने का, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में अगर आपको जानना है, लॉयल्टी बोनस क्या है, परफॉर्मेंस बोनस क्या है, उसका टारगेट क्या है, कैसा मिल सकता है, ये सारी चीज हर चीज का वीडियो बना के हम लोग ने डाला हुआ है। लर्न में जाएगा तो माई डिजी वर्ल्ड का पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों को इधर मिल सकता है। ऊपर जाइए, आप लोग बाद में स्टडी कर लीजिए आराम से। प्रोडक्ट्स में जाइए, प्राइस लिस्ट, जैसा आपको प्राइस लिस्ट चाहिए, आपका हाथ में प्राइस लिस्ट नहीं है, कोई पूछा बेलार्ड का रेट क्या है, ऐप ओपन करो, प्रोडक्ट में जाओ, प्राइस लिस्ट में जाओ, आपको अलग अलग भाषा में आपको प्राइस लिस्ट मिल जाएगा। देखो ये सब ट्रांसलेशन करने के लिए हम लोग को बहुत टाइम लगा हुआ है, हम लोग रिकॉर्डिंग करके इसमें डाले हुए हैं। अभी राकेश यादव को आप सुन नहीं सकते हैं, जैसा आलोक सर को हमेशा आप सुन नहीं सकते हैं, लेकिन ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग करके हम लोग ने डाला हुआ है। उसके पीछे खर्चा होता है, ये खर्चा किसके लिए कर रहे हैं, आप लोग का बेनिफिट के लिए, क्योंकि इन लोग को सब सन्मुखन तो आना पड़ता था, टाउन हॉल आना पड़ता था गांधीनगर से, आप लोग घर में बैठे बैठे ये सारी चीज सुन सकते हैं। ओके, तो प्राइस लिस्ट मिलेगा आपको कोई भी प्रोडक्ट का जानकारी चाहिए, जैसा प्रोडक्ट का पीडीएफ है, इधर हर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, और हर प्रोडक्ट के बारे में आपको वीडियो मिलेगा। ये कंपनी का वीडियो है, 5-10 मिनट का कंपनी का वीडियो है। कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी चाहिए, कोई भी प्रोडक्ट के बारे में आपको गुजराती में जानकारी चाहिए, मराठी में चाहिए, हिंदी में चाहिए, तेलुगु में चाहिए, ओडिया में चाहिए, सब कुछ आपको इसमें भाषा चूज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ट्रेनिंग, प्लान प्रेजेंटेशन, बीओपी कैसे करने का, अभी बहुत सारे लोगों को बीओपी करने को मालूम नहीं है, लेकिन बोलना तो वही है ना, लेकिन 10 बार सुनेगा, नोट्स बनाएगा। हम लोग क्या करते थे, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर थे, टीसी एटीसी थे, जब भी बीओपी होता था उधर जाके, हम लोग के जमाने में स्मार्टफोन वगैरह नहीं था, हम लोग को टेप रिकॉर्डर लेके जाना पड़ता था, उसको रिकॉर्ड करके नोट्स बना के रट्टा मार के बीओपी करने को सीखे हम लोग ने, 1-to-1 करने को सीखे। 1-to-1 कैसे करने का, प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करने का, क्लोजिंग कैसे करने का, ये सारा वीडियोस हम लोग ने इसमें डाला हुआ है। अलग अलग भाषा में है, हिंदी में चाहिए, गुजराती में चाहिए। समझो आपका कोई दोस्त उड़ीसा में, उसको इंग्लिश नहीं आता है, उसको हिंदी नहीं आता है, आप इधर से भेज सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। शेयर करने के लिए भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन चाहिए, किसको बेलार्ड का इंफॉर्मेशन चाहिए, उधर शेयर करने का भी इंफॉर्मेशन दिया है। वीडियो शेयर करना है वो भी है, बीओपी शेयर करना है वो भी है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर का ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग, नए डिस्ट्रीब्यूटर लोग क्या करना चाहिए, सिस्टम मीटिंग, नए डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को क्या सिस्टम फॉलो करना चाहिए, ऐसा अलग अलग। जैसे रिसेंटली गांधीनगर में 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ था गिफ्ट सिटी में, एसटीसी एंड एबो लोगों को, इसमें से आप लोग थे ना उसमें? आप लोग नहीं थे, जो लोग बाद में एसटीसी बने आप लोग नहीं थे, लेकिन ये वीडियो देखेगा तो आपको 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा। ये 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए मैंने 20,000 रुपए दिया हुआ है।
या आप लोग के बेनिफिट के लिए। सलील सर ने 2 दिन बात किए थे कंपनी के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, सब कुछ ये सब आप लोग सुन सकते हैं एक्चुअली। जैसा आलोक सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम डाला हुआ है, अभी रिसेंटली मुंबई में 2 दिन का 2 दिन का प्रोग्राम था मुंबई में, उसमें आलोक सर आए थे, शेखर सर आए थे, कंपनी का मैनेजमेंट आया था, निखिल सर आए थे। तो ये सब रिकॉर्डिंग करके हम लोग इसमें डालते हैं, तो आप लोग घर में बैठे बैठे आप लोग सीख सकते हैं एक्चुअली अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग अभी 10 तारीख को 2 दिन पहले प्रकाश सर का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, आप में से कुछ लोग अटेंड किए होंगे। एलिमेंट्स प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, हमने उसको रिकॉर्डिंग किया हुआ है, ये हफ्ते के अंदर वो भी रिकॉर्डिंग आएगा। आपका एलिमेंट्स ब्रांड के बारे में कुछ भी प्रोडक्ट का नॉलेज चाहिए, आपको इनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपको कंपनी का प्रोडक्ट ट्रेनिंग का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, उसमें बटन दबाओ, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का, इसमें प्रकाश सर का प्रोडक्ट ट्रेनिंग का वीडियो मिलेगा, आप सुन सकते हैं फ्रेंड्स। हर प्रोडक्ट के बारे में हम लोग ने डाला हुआ है इंफॉर्मेशन। सक्सेस स्टोरी में जाएगा तो इंडिया में जितने भी लोग हैं, जो लोग आईटीसी बने हैं, डायमंड बने हैं, सिर्फ हार्मोनी ग्रुप का नहीं, दूसरे लीडर लोग भी, अभी बहुत सारे लोगों को आप सुना नहीं है एक्चुअली, उन लोग को सुना नहीं आप लोग ने, उन लोग ने कैसा प्रोग्रेस किया वो नॉलेज आपके पास नहीं है, तो आप लोग इधर बैठ के उन लोग को सब कुछ सुन सकते हैं। ये सब रिकॉर्डिंग करके डाला हुआ है सब कुछ, ओके। इसमें संघ शरणम गच्छामि, ये लोग आपके घर पे आ सकते हैं, उन लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अटेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ने सब रिकॉर्डिंग करके इसमें डाला हुआ है एक्चुअली। ऑडियो बुक्स, बहुत सारे लोगों को किताबें पढ़ने का आदत नहीं है, क्योंकि एक किताबें पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ता है, लेकिन हर किताब का, अच्छे किताब का समरी 15 मिनट में ऑडियो समरी हम लोग ने इसमें डाला हुआ है ऑडियो बुक्स में, आप लोग सुन सकते हैं 15 मिनट में, उसका कंटेंट क्या है आपको मालूम पड़ सकता है। गैलरी में जाएगा तो इंडिया, हमारा हार्मोनी ग्रुप में कितना लोग कार अचीवर बन चुके हैं, वो लोगों का फोटोग्राफ्स है, सब कार अचीवर लोगों का, और इंडिया में दूसरा लीडर लोग, अलग अलग लोग जो कार अचीव किए हैं उन लोग का फोटोग्राफ्स है। इसमें आने के तो आपको कम से कम एसटीसी बनना पड़ेगा, एसटीसी बनने के बाद ही गाड़ी जो लेते हैं उन लोग का फोटो इसमें आएगा। अगर किसका भी फोटो नहीं है, मिसिंग है, कोई गाड़ी लिया है, प्लीज आप लोग अपलोड कीजिए, हम लोग को अपडेट कीजिए, ओके। इसका वेबसाइट का पासवर्ड इसका पास दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्टली इसको भी भेज सकते हैं, वो अपलोड करेंगे कुछ वीडियोस, फोटोग्राफ्स, जैसा अभी इधर का वीडियो ये भी अपलोड होएगा, ओके। आप लोग का फोटोग्राफ, क्योंकि हम लोग हार्मोनी ग्रुप पे फेसबुक पे कल शाम होने का पहले आप सब लोगों को पूरे इंडिया का हार्मोनी ग्रुप का लोग देखने वाला है, ओके। ऊपर जाइए। तो फंक्शंस का वीडियोस, जैसा बड़ा बड़ा फंक्शंस होता है, जैसा गांधीनगर में वो त्रिमंदिर में फंक्शन हुआ है, 2-3 बार हुआ है, 10,000 लोग, जैसा मुंबई में बड़ा बड़ा फंक्शन हुआ है जिसमें 70,000 लोग थे। अभी कोरोना पीरियड में ये सब फंक्शंस नहीं हुआ है, कोरोना का पीरियड में बहुत सारा फंक्शंस रेगुलरली होते रहता था, हम वो टाइम पे आप लोग नहीं थे, माइग्रेशन में आप लोग नहीं थे, इन लोग सब अटेंड किए हुए हैं, लेकिन आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो उसका वीडियोस आपको इधर मिल जाएगा। जैसा मलेशिया में फंक्शन हुआ, दुबई में फंक्शन हुआ, आप लोग उसमें नहीं थे, लेकिन आप लोग देखना चाहते हैं तो इधर वीडियो सब सेलेक्ट करके हम लोग ने डाला हुआ है। लेडीज लोग ट्रेनिंग का फोटो, जितना लेडीज लोग सब अचीवमेंट किया है सब लोग का फोटो, इधर आपको आने का है तो कम से कम एसटीसी बनना पड़ेगा। हेलो, आपका फोटो चाहिए इधर, जल्दी एसटीसी बनो। नेशनल टूर, इंटरनेशनल टूर, गोवा हम लोग जाते रहते हैं, अभी रिसेंटली 800 लोग गए थे, अभी फरवरी मार्च में 1,500 लोग जा रहे हैं। उसी तरीके से जब थाईलैंड चालू होएगा, थाईलैंड का टूर हम लोग ने बहुत घूमे हुए हैं, ये बिजनेस का वजह से, कंपनी का वजह से, मनाली इधर उधर, तो ये सब फोटोग्राफ्स इधर आ जाएगा। आप लोग क्लोजिंग का टाइम पे प्लान समझाने के बाद टीम का सपोर्ट क्या है
वो दिखाने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग सुनने से देखने में विश्वास करते हैं तो आप दिखा सकते हैं ये सारी चीजें। ये सब थोड़ा स्टडी करेगा ना, आपका अंदर से आवाज आने को चालू हो जाएगा, आप अपने आप से बातें करने को चालू करेगा, आपको एक सही संगत मिलेगा लीडर लोगों का, जो लोगों के साथ आप नहीं दे सकते हैं नहीं तो ओके आप घर में बैठे बैठे आपको मोबाइल का माध्यम से ये सारे लोग आपको मिलेगा, जिसका वजह से आपका सोचने का तरीका, सोचना बोलेगा तो क्या है, अपने आप से बातें करने का तरीका बदल जाएगा, जिसका वजह से आपकी जिंदगी में तथा दृष्टि तथा सृष्टि होने को चालू हो जाएगा। ये हमारा काम है रोड बना के देना, आपके लिए एक सही एटमॉस्फेयर बना के देना, ओके लेकिन उसका सही तरीके से फायदा आपको ही उठा लेना पड़ेगा। अभी इसमें वक्त निकालना पड़ेगा, बराबर है ना, जानने के लिए। हेलो, आप लोग वक्त निकालते हैं? हाँ? मेरे गर्लफ्रेंड का मैसेज है। मैं आप लोग को मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप लोग का आईडी में कितना बिजनेस होता है, आपका आईडी ओपन करेगा तो दिखता है लेफ्ट में कितना हुआ, राइट में कितना हुआ, ये हफ्ते में कितना हुआ, ये महीने में कितना हुआ, दिखता है। उसी तरीके से ये जो वेबसाइट हम लोग बनाए हुए हैं, हम लोग को रिपोर्ट आता है गूगल से, कितना लोग कौन सा एरिया से कितना बार वेबसाइट का अंदर गए और कितना मिनट देखा, हम लोग को रिपोर्ट आता है। मैं कुछ पढ़ के दिखाना चाहता हूं। हमने जो मेहनत किया ये आप लोग के लिए, क्योंकि हमको क्या है 2,10,000 से ज्यादा तो आता नहीं है, वो तो 2,10,000 ऐसे आ जाता है। आप लोग 1-1 करोड़ का बिजनेस करते हो हर हफ्ते में, फ्लश आउट है हम लोग के लिए। ये सब हम चाहते हैं आप लोग को, हम लोग जो तकलीफ उठाए ट्रेनिंग लेने के लिए, पैसा जो खर्चा किए, मेहनत किए, 4-4 घंटा क्यों में खड़े रहे, वो तकलीफ आपको मिलना नहीं चाहिए। जैसा मैं बताया 15 साल का काम आपके साथ 5 साल में होना चाहिए, इसके लिए ये सिस्टम आपके लिए डेवलप किया हुआ है। ओके मैं नंबर्स पढ़ के बताता हूँ। ये लास्ट महीने का रिपोर्ट है, मैं संजय भैया को भेजा हुआ है, संजय भैया को भेजा हुआ है। आपका अहमदाबाद से लास्ट महीने में ये वेबसाइट का अंदर 186 लोग गए हुए हैं, मोरबी से 48 लोग गए हुए हैं, गांधीनगर से 34 लोग गए हुए हैं, वडोदरा 33, हिम्मतनगर 26, महसाना 25, पालनपुर 25, जामनगर 24। कितना डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं इधर, सबका टोटल करेंगे तो उससे ज्यादा लोग आप इधर बैठे हैं, और लास्ट महीने में इतना लोग एंट्री किए ये वेबसाइट का अंदर। हेलो, अभी सब लोग जो अटेंड किया तो एवरेज टाइम आता है, एवरेज टाइम कितना स्पेंड किया इसका अंदर, मालूम है आप लोग एवरेज टाइम क्या है? आपको भी शर्म आ जाएगा। एक सीरियल देखने के लिए कितना टाइम लगता है? क्रिकेट मैच देखने के लिए पूरा दिन, एक मूवी देखने के लिए कितना घंटा लगता है? ये वेबसाइट का अंदर एवरेज टाइम 4 मिनट्स है, 4 मिनट है, 4 मिनट एवरेज टाइम। करोड़पति बनना चाहते हैं आप लोग? आईटीसी बनना चाहते हैं? चेंगा मैं और कुछ बोलना चाहता था मुंबई का भाषा में। ये है आपका औकात। 25 लोग, 50 लोग, सब ऐड करेंगे तो 200 लोग, इधर 800 लोग बैठे हैं। ये मैं क्रिएट किया हुआ नहीं है, गूगल का रिपोर्ट है फ्रेंड्स। अभी आप समझ लो, इसके लिए मैं बताया आपको, सुनना अलग होता है, समझना अलग होता है, करना अलग होता है। हम लोग को एक डाउनलोड करने के लिए आधा घंटा लगता है, एक वीडियो डाउनलोड करने के लिए। ये बंदे को वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए पूरा दिन 4 घंटा लगता है।
उसको डाउनलोड करने के लिए 4 घंटा लगता है, उसका बाद YouTube में डालने के लिए, वेबसाइट में डालने के लिए वक्त लगता है। और आप लोग 4 मिनट, मानो आप लोग, मेरे को बताओ आपका पाँव किधर है, मैं जरा छू के जाता हूँ, क्या होएगा आप लोग के साथ? हमारा काम पता नहीं भाई, बाकी आपका ऊपर है, जो करना चाहिए वो कर लो, लेकिन हमारा जिम्मेदारी जो है करते रहेंगे आप लोग का बेनिफिट के लिए, आपका काम थोड़ा इजी बनाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है, कोई भी चीज पुकड़ में मिलता है ना, उसका कदर नहीं है। जैसे ये बिजनेस आप लोग को पुकड़ में मिला, आप लोग को कदर नहीं है। प्रॉब्लम ये है, ये वेबसाइट बटन दबाएगा तो आ जाता है, हम लोग उसका पीछे टाइम इन्वेस्ट किए हुए हैं, पैसा इन्वेस्ट किए हुए हैं, आप लोग को कदर नहीं है। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। इसका वजह से 90% लोग जो एक्चुअली कमाना चाहिए वो कमाते नहीं है फ्रेंड्स। सुधरो। सुधरो। आज से चालू करेंगे सर। सुधरो। आज से भी चालू करेगा ना, ज्ञानोदय हो गए तो बस हो गया। क्योंकि जीसस क्राइस्ट को 30 साल की उम्र में ज्ञानोदय हुआ था, मोहम्मद पैगंबर को 40 साल की उम्र में ज्ञानोदय हो गया था। हम लोग को यह अपॉर्चुनिटी लेट मिला। इधर बहुत सारा बच्चे लोग हैं, यंग जनरेशंस, या आप लोग का बिजनेस है, आपका नेक्स्ट जनरेशन, जैसा मैं बताया, आप लोग जो पैसा कमाने के लिए कष्ट उठाते, उस तरीके का कष्ट उठाना नहीं चाहिए। तो आप लोग को जिम्मेदारी बनाना लेना पड़ेगा अपना सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए। संकर्षणम गच्छामि, जैसा मैं बताया, कुछ काम को पोस्टपोन करने का ये साइकोलॉजिकल डिसीज है, प्रॉब्लम है एक्चुअली। उसका वजह से आगे जाकर तकलीफ हो सकता है। उसमें से बाहर आना चाहता है तो आपको कुछ तो अपने आप से बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोलने से कुछ नहीं होएगा। क्योंकि बाहर से जो मोटिवेशन आता है ना, वो मोटिवेशन ज्यादा रुकता नहीं है। ये नूडल खाता है ना आप लोग को जल्दी भूख लगेगा। उसी तरीके से मैं जो बोलता है ना, आप लोग भूल जाएंगे, याद नहीं रहेगा। इसके लिए मैं बोलने के बाद आपको अपने आप से बातें करना। कल से मैं ये वेबसाइट स्टडी करूंगा, वक्त निकालूंगा। जब आप बोलेंगे अपने आप करने को चालू करेंगे। जब आप खुद बोलेंगे मैं इसमें से बिजनेस प्लान सीखूंगा और मैं खुद प्लान शो करने के लिए चालू करूंगा, तभी आपका उद्धार होने को चालू हो जाएगा। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन से कुछ नहीं होता है। क्योंकि जिंदगी जीना बहुत सरल है मेरे हिसाब से। नौकरी सब लोग जिंदगी जीते हैं, लेकिन माइनस स्टाइल में पैसा कमाना भी बहुत सरल है। क्योंकि इससे सरल और कुछ नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। फिर आप पूछेंगे मुश्किल क्या है? मुश्किल यही है, सरल काम को डिसिप्लिन के साथ करना ही मुश्किल है। आप लोग सीरियल बोले आधा घंटा देखते हैं, मैच पूरा दिन देखते हैं। बिजनेस में तो आया है, आपको मालूम है इधर जिंदगी बदल सकता है। जिंदगी बदला हुआ है करके लाइव एग्जांपल से इधर। फिर थोड़ा डिसिप्लिन के साथ जो करना चाहिए, छोटे मोटे कार्यक्रम क्यों नहीं करते हो? करेंगे आप लोग? सुधरो। जिंदगी को ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो। क्योंकि जैसा मैं बताया ना, आपका घर चलाने के लिए कोई नहीं आने वाला। आपने हाथ ऊपर किया था, मेरे घर पे बच्चे हैं। उसके बाद आप ये भी बोला ये मेरा ही है, अभी उसकी जिम्मेदारी आप लोग है। बिजनेस में पैसा कमाना बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। आपको सिर्फ दुकान बदलना है। ईमानदारी से दुकान बदलो ना, और क्या करना है? रीपरचेस करना है, वो तो ऐसे ही करते हैं आप लोग। बिग बाजार को अमीर कर रहे हैं, अमेज़न वालों को अमीर बना रहे हैं, डीमार्ट वालों को अमीर बना रहे हैं। ये आपका दुकान है, आपका दुकान से सामान खरीदो, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, अच्छा चीजों को दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। अच्छा पिक्चर देखते हैं तो दूसरों को बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? बोलते हैं आप लोग। कट्टापाली क्यों मारा बाहुबली को? आप बोल के बाहुबली फेमस हो गया ना। उसी तरीके से हर महीने में 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 का रीपरचेस करने की वजह से, यही आइडिया दूसरों के साथ शेयर करने की वजह से
हर हफ्ते में 1-2 लाख रुपए कमा सकता है तो दूसरों को ये आइडिया शेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं वही कर रहा हूं, वही कर रहा हूं। ना मेरे पास कोई ऑफिस है, ना मेरे पास कोई दुकान है। इधर का बहुत सारे लीडर लोग का अपना अपना ऑफिस है। मैं जिधर खड़ा रहता हूं उधर मेरा ऑफिस चालू हो जाता है। ना मेरा कोई नौकर चाकर है, ना कोई फैक्ट्री है। कंपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, कंपनी प्रोडक्ट पहुंचाता है, कंपनी एजुकेशन देता है हार्वेस्ट का माध्यम से, कंपनी स्टॉक रखता है। आपको सिर्फ आइडिया शेयर करना है, वही तो मैं कर रहा हूं। जिसकी वजह से आज मेरा आईडी के नीचे 2 लाख से ज्यादा आईडी ऑलरेडी हो चुका है ऑल ओवर इंडिया। मोर देन 2 लाख आईडी मैं देखा भी नहीं है काफी टाइम से, लेकिन मुझे मालूम है 2 लाख से ज्यादा आईडी है। मैं भी अकेला था, मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर था, लेकिन डिसिप्लिन का साथ। डिसिप्लिन क्या है? करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते फिर भी करते हैं। अगर मेरे घर पे साबुन नहीं रहेगा ना, माइलेस्टर का साबुन नहीं रहेगा ना, मैं दूसरा साबुन नहीं लगाऊंगा, ये मेरा डिसिप्लिन है। अगर मेरे घर पे टूथपेस्ट नहीं रहेगा ना, मैं दूसरा टूथपेस्ट नहीं लगाऊंगा, ये मेरा डिसिप्लिन है। आपका मुझे मालूम नहीं है, इसके लिए मेरा घर पे घोड़ी भर के मैं रखता हूँ टूथपेस्ट, क्योंकि मेरे को दांत घसना है। इधर भी है ऊपर, तेल भी लगाता हूँ, क्रीम भी लगाता हूँ, क्योंकि चिकना दिखना चाहता हूँ। क्योंकि अभी मैं 64 का है, लगता तो नहीं ना? दिन 25 का है इसके लिए। तो इतना सिंपल काम करना है आपको, क्योंकि 10 साल का बाद भी मैं ऐसे ही आप लोगों को पकाना चाहता हूं। अगर इस दुनिया में नहीं रहेगा तो मेरा आत्मा आके पकाएगा। तो सिंपल रखो, आपका दुकान है, दुकान बदलो, ब्रांड बदलो, डिसिप्लिन का साथ, और आइडिया शेयर करो। जैसा मैं शुरू में बताया आपको, आपका जाने अनजाने में देश की सेवा होएगा, जाने अनजाने में बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा दूसरों को, आपका पैसा कमाने के चक्कर में। रीपर्चेस को ऊपर ध्यान दो। कोई बोलना नहीं चाहिए आपको रीपर्चेस करने के लिए, कोई बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि रीपर्चेस, रिटेलिंग ये बिजनेस का ताकत है। आपके लीडर लोग आपको सिखाते हैं बाकी सारी चीजें, लेकिन उसको करो डिसिप्लिन का साथ। आपको रेगुलर बेसिस में आपका बिजनेस करने के लिए अलग अलग आइडियाज नोटिफाई देते रहते हैं, उसको इंप्लीमेंट करो। आप लोग सुनना अलग होता है, समझना अलग होता है, करना अलग होता है। क्योंकि मैं भगवत गीता का एक सेंटेंस को बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि भगवत गीता में 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने एक ही चीज बोला है, अगर आप धर्म का अनुसार कर्म करेंगे तो कर्म का अच्छा फल मिलने का चांस बढ़ जाता है। क्योंकि धर्म बोलेगा तो हिंदू मुस्लिम वो नहीं, धर्म बोलेगा तो आप जो काम कर रहे हैं जिसका वजह से आपको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, सामने वालों को भी बेनिफिट मिलना चाहिए, वही धर्म है। धर्म का अनुसार कर्म, क्योंकि आपका हेल्थ बढ़ते हैं, दूसरों को पैसा कमाने का मौका देते हैं आप, उससे अच्छा धर्म का काम और क्या हो सकता है? वही करते रहो, क्योंकि आपका काम है बीज डालने का, आपका काम है देखभाल करने का। उसमें से फल आएगा या नहीं आएगा आपका कंट्रोल पे नहीं है, वो कुदरत का काम है। लेकिन आप जो कर सकते हैं उतना तो करो। ये वेबसाइट में जाके 4 मिनट वो एक हिंदी पिक्चर रहता है ना, जो हीरो रहता है 4-4 मिनट तो पप्पी देते रहता है वो इमरान हाशमी। 4 मिनट में उसका एक पप्पी खत्म होता है, खत्म नहीं होता है, और आप लोग वेबसाइट देख लेते हैं 4 मिनट में। मान दो आप लोग, जो कर सकते हैं उतना तो करो भाई, ईमानदारी के साथ, क्योंकि आप आपका बच्चे लोग के लिए जिम्मेदार हो। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चे लोग भी साधारण जिंदगी जी ले, आपके बच्चे, हमें क्या करना है? हम भी साधारण थे, हमारे पास मोटरसाइकिल भी नहीं था। आप में से बहुत सारे लोगों के पास मोटरसाइकिल रहेगा, इधर बीवी को बिठाते हैं, 2-2 बच्चे लोग को बिठाते हैं, किसको भी फोटो निकालने को बोलो
वो आधा बीवी हवा में रहती है, वो गुरुत्वाकर्षण का शक्ति उसको खींचते रहता है, फिर भी आपको पकड़ के रखता है। मुबारक हो, मोटरसाइकिल में भी 4 लोग बैठ सकता है, BMW में भी 4 ही लोग बैठते हैं। किधर बैठाना है आपको डिसाइड करना है। और एक बिजनेस में जैसा मैंने बताया, बिजनेस को सिंपल रखो, सरल है बिजनेस। दुनिया में जितना भी लोग अमीर बने हैं, एक ही कारण की वजह से अमीर बने हैं, दूसरों का तकलीफ का सॉल्यूशन लोगों का बिजनेस है। जैसा आप लोग को मच्छर काटता है ना, कभी कभी वो लोग चुपचाप आके पप्पी देके चले जाते हैं ना रास्ते, आप बुझाते रहते हैं, आपके लिए तकलीफ है, लेकिन ऑल आउट वाले के लिए बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है। उसी तरीके से आज लोगों को एक्स्ट्रा इनकम का जरूरत है, तकलीफ है पैसे का, जॉब गया हुआ है लोगों का, आधा पगार हुआ है, जॉब मिलता नहीं है, बिजनेस का वाट लगे हुए है। हमारे मुंबई में बहुत सारा मॉल्स में अभी भी दुकान खुला नहीं है, दुकान खुला है तो भी सबको अंदर जाने को छोड़ते नहीं, सर्टिफिकेट देखते हैं। एयरपोर्ट में भी अगर आप लोग जाएंगे तो 50% दुकानें बंद है, अभी भी वाट लगा हुआ है लोगों का। और आप लोग लोगों को उन लोग का तकलीफ का सॉल्यूशन दे सकते हैं, और वही सॉल्यूशन आपका बड़ा बिजनेस है। लोगों को हेल्थ का प्रॉब्लम है, लास्ट 2 साल में खुद का हेल्थ को क्यों अच्छा रखना चाहिए, वो चीज कोरोना ने अपने को सिखा दिया है। एक्चुअली डॉक्टर के पास जाके उधर मरने से ये शरीर को थोड़ा अच्छा रखेगा तो अच्छा है। एक्चुअली ये समझ लोगों को आया हुआ है, लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका पास है, लोगों का हेल्थ अच्छा रखने का। अपना बिजनेस बना डालो उसको, पूरा दुनिया वही कर रहा है एक्चुअली, दूसरों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लोगों को देके आप बिजनेस कर सकते हैं। और ये बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है, आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए बिजनेस को आप छोड़ के जाना चाहता है, तो आपको सच्चाई और ईमानदारी के साथ बिजनेस करना बहुत जरूरी है। सच्चाई और ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी, ट्रस्ट, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कंपनी को अभी तक देखा नहीं है। देखा है क्या? नहीं देखा है आप लोग ने। आपने आपका अप्लायंस को देखा है, उसका अप्लायंस को देखा है, उसका भरोसे पे आया है। उसी तरीके से आपका लोग जो आएंगे ना, आपको देख के आएगा। वो ट्रस्ट, वो रिलेशनशिप आपको मेंटेन रखना पड़ेगा। सच्चाई और ईमानदारी लंबा सफर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। एक बार एक पिताजी एक लड़के को, अपना एक टीचर अपना बच्चे को, स्टूडेंट को एक डब्बा देता है डैडी को देने के लिए। ओपन मत करना, डैडी को देना ये डब्बे को। लेकिन बच्चे तो बच्चे, जब ये अकेला चल के जाता है, कोई नहीं है, कौन टीचर को बोलने वाला है, कौन डैडी को बोलने वाला है, ओपन करता है, उसमें से एक चूहा भाग जाता है। अभी चूहा भागेगा तो पकड़ेगा कैसा? डैडी को जाके बोलता है टीचर ने एक डब्बा दिया था, उसके अंदर आपको देने के लिए चूहा डाल के दिया। बेवकूफ नहीं का अक्ल नहीं है, टीचर को चूहा देते हैं आपको देने के लिए। लेकिन मैं ओपन किया, चूहा भाग गया है, टेंशन नहीं लेने का, चूहा था, भाग गया। तभी उसका डैडी उसको जवाब देता है, बेटा चूहा नहीं भागा, तेरा ऊपर का टीचर का भरोसा हमेशा के लिए भाग गया। भरोसा बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है, भरोसा टूटने के लिए एक गलती हो बस होती है, एक गलती बस हो गई। इसके लिए हर दिन आपका हर एक्शन में सच्चाई, ईमानदारी, ट्रस्ट, भरोसा डेवलप करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, लंबा सफर के लिए। क्योंकि वो लड़का इधर उधर देखा, कोई देख नहीं रहा है, ओपन किया, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला देखता है नहीं देखता है वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जब ये आप अच्छा काम करते हैं ना, आपका खुद का नजर से आप ऊंचा होते हैं। जब ये आप गलत काम करते हैं ना, कोई देखे या ना देखे, खुद को तो समझ में आता है ना मैं गलत कर रहा है करके। इसके लिए क्योंकि बहुत सारे लोग
मैं देखा हुआ है, मैं इंडस्ट्रियल में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का स्टॉक रखवा देते हैं। वो बेचारे के पास स्टॉक पड़ा रहता है, बाद में वो ऑनलाइन में बेचने को चालू कर देता है। मुंबई में एक लीडर ने एक बंदे को एक दिन में सीलिंग एचओआर बनाया था। समझ में आ रहा है आपको? एक दिन में षणमुखानंद का स्टेज में आया था, शायद आप लोग ने आया है तो देखा होगा आप लोग ने। एक दिन में सीलिंग एचओआर बनाया था। सीलिंग एचओआर तो बन गया, पैसा था डाल दिया, खुद का दुकान था लगा दिया, लेकिन 6 महीने के बाद दुकान भी बंद और डिस्ट्रीब्यूटर भी बंद। नेगेटिविटी बात करने को चालू किया। इसके लिए बिजनेस को सही तरीके से करना बहुत जरूरत है, क्योंकि रेपुटेशन क्रिएट करने के लिए सालों लग जाता है। रेपुटेशन खराब होने के लिए एक गलती बस हो गया। आप कितना अच्छा काम किया उसको कोई याद नहीं रखते हैं, लेकिन आप एक गलती काम करेंगे तो उसको पकड़ लेते हैं लोग। इसके लिए जब भी आप प्लान समझाते हैं, बिजनेस डेवलप करते हैं, आप जो कमिटमेंट देते हैं, वो जो वर्ड देते हैं ना, उसको पकड़ के रखो। मैं हूं ना बोलते हैं ना, साला तू है, यही तो लफड़ा है ना, उस तरह हो। कुछ लोगों का हरकतें लोगों को मालूम रहता है, और ये सही क्या गलत क्या समझने के लिए कोई डिग्री का जरूरत नहीं है। जैसे एक बार एक डैडी अपना बच्चे को रामायण पढ़ा रहा था, चर्चे मारने पढ़ा रहा था। उसी टाइम एक कॉल आता है उसका दोस्त का, डैडी का, उसको पैसा देने को रहता है। तो फोन उठाता है, तो बच्चा फोन उठाता है, तो डैडी पूछता है कौन है, वो बोलता है नाम उसका, इसको मालूम है उसको पैसा देना है। तभी डैडी उसको बोलते उसको बोलो मैं नहीं है। आप लोग भी किया होगा क्या कभी ना कभी? बोलो मैं नहीं है। वो देखता है डैडी को 6 फुट का सामने खड़ा है, बोलता है मैं नहीं है। बच्चे को तो झूठ बोलने को आदत नहीं है। वो फोन उठाता है और बोलता है डैडी बोल रहा है, डैडी नहीं है। तो डैडी को गुस्सा आता है, ये तो फटका लगाता है। अभी उसका सॉफ्टवेयर ठीक होता है। नेक्स्ट दिन वापस कॉल आता है, फोन उठाता है, डैडी है क्या? वो पूछता है, वो बोलता है रुको 1 मिनट, डैडी से पूछता हूँ वो है कि नहीं। बच्चे लोग को झूठ बोलने को आता नहीं, हम सिखाते हैं। उसी तरीके से कभी कभी आप लोग एक छोटा मोटा गलती करते हैं, छोटा मोटा गलती करते हैं। जैसा टीम बाजू में बैठा हुआ रहता है, आप बोलते हैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट में। साला गुजराती लोग का 2 मिनट साला आधा घंटे का रहता है। 2 मिनट में आ रहा हूँ, और आपका डाउनलाइन आपको सुन रहा है। आप क्या कर रहे हैं मालूम है? परमिशन देते हैं बच्चे लोगों को झूठ बोलने के लिए। आपका डाउनलाइन को आपके साथ झूठ बोलने के लिए आप परमिशन देते हैं, क्योंकि आपका टीम आपको फॉलो करता है। आप घर में बैठे हैं, लोगों को बीओपी में जाने के लिए बोलते हैं, आप तो उद्धार नहीं होएगा। आप वेबसाइट देखते नहीं है, स्टडी नहीं करते हैं। अगर लीडर लोग टीसी एंड अबव लोग भी देखेगा तो सारा 1 महीने का कम से कम 700, 800, 1000 होना चाहिए था, क्योंकि उतना टीसी एंड अबव लीडर था इधर। आप तो करते हैं, आपका टीम करते हैं। अगर आप फ्राइडे के दिन रीपरचेस करते हैं, आपको कोई अधिकार नहीं है आपका टीम को बोलने का। फर्स्ट वीक में करो, 10 दिन का अंदर करो। अगर मैं आपको बोलता है तो मैं करता हूं, इसके लिए मैं आपको बोलता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है नहीं करेगा तो आगे जाकर क्या प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आप आज का कमरे में रहते हो, लोग आपको देखते हैं, क्योंकि लोग कंपनी को देख के नहीं आए, लोग आपको देख के आए। इसके लिए आपका हर हरकतें बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में भी बाहर भी। एज ए फादर, एज ए सन, सिंपल। जैसे शायद मुंबई में आजकल एक कांड चल रहा है ड्रग का। शाहरुख खान का बेटा के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे। जब ये आर्यन खान 2 साल का था, तभी शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू दिया था सिमी ग्रोवर के पास। उसका वीडियो है, देख लो आप। वो क्या बोलते हैं मालूम है? मैं चाहता हूं मेरा बेटा ड्रग्स लेना चाहिए। बाप बोल रहे हैं खुद का बेटा के बारे में। मैं चाहता हूं
वो लड़के लोग के साथ घूमे, लड़के लोग के साथ सेक्स करे, मैंने जो कुछ भी नहीं किया मेरा बेटा करे। बाप बोल रहे हैं बेटा के बारे में। वो बेटा कभी ना कभी तो वो वीडियो देखा होगा ना बड़ा होते होते। तथा दृष्टि तथा सृष्टि 25 दिन अंदर बैठ के बाहर है अभी बेल में। सही क्या गलत क्या, लेकिन इसमें से एक सीखना है, ड्रग्स लिया तो शाहरुख खान का बेटा को भी नहीं छोड़ा जाएगा, अंदर जाना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। उसी तरीके से गलती करेगा तो सजा मिलना ही चाहिए मेरे हिसाब से, लॉ का हिसाब से। क्योंकि यंगर जनरेशन को पर्टिकुलरली हमारा मुंबई में तो बहुत लोग सिगरेट पीते हैं, लोग दारू पीते हैं पार्टी में, उस तरीके से ड्रग का पार्टी होता है, जिसका वजह से यंगर जनरेशन खराब हो रहा है। हर एक का घर में कोई ना कोई बच्चा है ना, हर एक का घर में कोई ना कोई बेटा है बेटी है। आप चाहते हैं आपका बच्चे लोग उस तरीके का माहौल में जावे, लेकिन फैशन बन गया है, क्योंकि ये सारे लोग रोल मॉडल्स है, ये सारे लोग रोल मॉडल्स है, लोग देखते हैं उन लोग को। फ्रेंड्स, जितने भी लोग इधर शादीशुदा हैं, आप लोग को एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। जैसा मैं आपको शुरुआत में बताया एक सेंटेंस, हमें प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है, उसके साथ एक अच्छा इंसान भी बनना है। आपको एक रोल मॉडल बनना है आपके टीम के लिए। आपको देख के लोगों को ऐसा लगना चाहिए, अगर इसको फॉलो करेगा तो मेरा भी जिंदगी में उतार हो सकता है। क्योंकि आप बोल नहीं सकते लोगों को, मैं जैसा बोलता हूं ऐसा करो, आपको करके दिखाना पड़ेगा वो चीज को। अगर जितने भी लोग शादीशुदा है ना, मैं आप लोग को एक एडवाइस करना चाहता हूं, अपने बच्चे लोग के सामने कभी झगड़ा मत करो। क्योंकि कभी कभी आर्गुमेंट करते हैं ना, क्या होता है मालूम है, हम कुछ भी बोल देते हैं गुस्से में। आप गुस्से में जो कुछ भी बोलते हैं ना, अपने बच्चे लोगों को परमिशन देते हैं कुछ भी बात करने के लिए, बिना रिस्पेक्ट का वर्ड यूज करने के लिए। इसके लिए हर आपका एक्शंस, चाहे वो फैमिली में हो, ये भी फैमिली है, बिजनेस है, बिजनेस में भी फैमिली है, क्योंकि टीम इज वन काइंड ऑफ परिवार। आप टीम बनाना बोलेगे तो शादी का जिंदगी जीने का जैसा है, क्योंकि शादी जैसा एक एडजस्टमेंट है, कॉम्प्रोमाइज है, सैक्रिफाइस है। एक साल के अंदर डाइवोर्स देने का तो बात अलग है, लेकिन 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल अगर शादी का जिंदगी जी रहे हैं, तो जो लोग 25 साल से शादी का जिंदगी जी रहे हैं, आपको मालूम है कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उसी तरीके से इधर टीम बनाने के लिए बहुत सारा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारा एनाकोंडा लोगों के साथ जीना पड़ेगा, जीने को सीखना पड़ेगा। क्योंकि ये बिजनेस में सब तरीके का लोग आते हैं, सब तरीके का लोग आते हैं। आपको एडजस्ट करने को सीखना पड़ेगा, आपको कॉम्प्रोमाइज करने को सीखना पड़ेगा। लोग आपका भरोसा करना चाहिए, उसके लिए आपका हर हरकतें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जो समझो, मेरे पास एक गोल्ड का एक एरो है, गोल्ड का एरो, एरो को क्या बोलते हैं, तीर। मैं जुप करके मारूंगा, आपको लगेगा, दुखेगा, लगेगा ना। हरीश शेट्टी का चोड़ा तो क्या हो गया, लग गया भाई, दुखता है, लगेगा तो दुखता है। गोल्ड का तो क्या हो गया, कभी कभी हम लोग कुछ शब्द ऐसा यूज कर लेते हैं, सामने वाले को दुख जाता है, दुखता है। तो इसके लिए जब भी नहीं तो मुंह बंद रखो, जितना हो सकता है उतना मुंह बंद रखो। अगर मुंह खोल रहा है तो संभाल के खोलो, पर्टिकुलरली अपना टीम का साथ, अपना परिवार का साथ, क्योंकि दुखता है। कल मैं एक टीम के साथ बैठा हुआ था, एक एनटीसी का कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग उन लोगों ने सुना है टीम, उस तरीके से वो बात कर रहा था, मतलब वो बाकी सब नौकर लोग हैं, वो बॉस है, एनटीसी बन गया। मैं जैसा बोलता हूं ऐसे तेरे को सुनना है, मैं जैसा बोलता हूं ऐसे सुनना है। बॉस, आप लोग को समझाना चाहता हूं, कोई टीसी बनते नहीं है,
कोई एनटीसी बनते नहीं है, कोई एसटीसी बनते नहीं है। वो टीम है ना, काम करता है, जिसका वजह से हमारा लेवल चेंज होता है। ये कोई कुछ बनता नहीं है, टीम बनाता है। ये समझ अगर आपके पास है तो आप हमेशा टीम के लिए ग्रेटफुल रहेंगे और ऐसा एरो छोड़ेगा नहीं। आपको ऐसा लगता है ये गोल्ड का है, लेकिन सामने वालों को दुखता है। इसके लिए बी कॉन्शियस और गुस्सा ये एक ह्यूमन इमोशन है, इसको ऊपर जितना कंट्रोल रहेगा तो उतना अच्छा है, क्योंकि सब तरीके के लोग हैं। कभी कभी छोटा सा एक सेंटेंस का वजह से लोग काम करना बंद कर देते हैं। तेल लगाने के लिए गए थे लोग, अपने को छोड़ के नहीं जाते, लोग कंपनी छोड़ के नहीं जाते, अपने को छोड़ के जाते हैं। इसके लिए, क्योंकि ये सब हुआ है, इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि आज भी कुछ लोगों का 4 जन का टीम है, अकेला है, कल बड़ा टीम बनेगा। तो हमेशा थोड़ा केयरफुल रहो, क्योंकि जब भी आप गुस्सा करते हैं ना दूसरों का ऊपर, आप दूसरों को ज्यादा प्रॉब्लम में नहीं डालते हैं, उसको प्रॉब्लम में डालने का पहले खुद को ज्यादा प्रॉब्लम में डालते हैं। अगर समझो आपको मैं रोज पॉइजन देगा, पॉइजन विष आप पिएगा नहीं, समझदार है नहीं पिएगा। लेकिन जितना बार भी आप गुस्सा करते हैं ना, थोड़ा गूगल में जाकर चेक करो, एक केमिकल पैदा होता है, वो कोई पॉइजन से कम नहीं है, वो कोई पॉइजन से कम नहीं है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, गूगल में जो स्टडी किया है उसको बोलता हूँ मैं, ये साइंस है। क्योंकि इस तरीके आप जब भी गुस्सा करते हैं तो सामने वालों को बाद में इफेक्ट होएगा, खुद पोजीशन पीने को चालू करेगा। और जितना भी डायबिटीज का पेशेंट लोगों को देखो, उन लोगों का एक नेचर है गुस्सा होने का, और डायबिटीज का मेन रीजन और कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुस्सा। थोड़ा शांति से रहो, पैसा तो आएगा मेरी लाइफस्टाइल में, लेकिन बड़ा लेवल अचीव किया, गुस्सा करके करके डायबिटीज चालू हो गया, लड्डू भी नहीं खा सकते दिवाली में, लफड़ा हो जाएगा। कार्डिनल रूल्स, लंबा सफर के लिए आपको कुछ रूल्स स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। नो स्नैचिंग। कुछ लोगों को शॉर्टकट मारने का आदत है, इधर से निकालने का, उधर डालने का, तो उसको वो टीम से कोई आएगा देखने का, उसको उठाने का। कोई सेमिनार पे आता है तो समझो आप एक सेमिनार पे किसको लेके आते हैं, मैं उसको जानता हूँ, मैं उसको जाके बोलूंगा घर पे जाके, तेरे को गाड़ी दूंगा, घोड़ा दूंगा, पावर लेके दूंगा, पैसा भी दूंगा, तो उसके साथ ज्वाइन कर, मत कर, मेरे साथ ज्वाइन कर। वो तो ज्वाइन करेगा, उसको तो मालूम नहीं कुछ। आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा आपको अच्छा नहीं लगता है तो अगर आप वो काम करेंगे तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, उसका मतलब ऐसा काम हमें नहीं करना। ये कार्डिनल रूल है, नो स्नैकिंग। और स्नैकिंग करेगा तो कंपनी आपका आईडी को ब्लॉक भी कर सकता है। दूसरा, नो मिसयूजिंग अदर्स मनी। अगर कोई इंसान 5,000 देता है, 50,000 देता है, लाख रुपए देता है, 10,000 देता है, ईमानदारी से उसका आईडी डालो और उसको प्रोडक्ट मिलना चाहिए। क्योंकि कुछ लोगों को 12% नहीं चाहिए, पूरा 100% चाहिए। स्वाहा। अगर आपसे कोई पैसा लिया, आईडी नहीं डालेगा, प्रोडक्ट नहीं डालेगा, तो आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। ये सिंपल है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए। सही गलत उसके बीच में कुछ नहीं है, नहीं तो आप सही करते हैं, नहीं तो आप गलत करते हैं, उसके बीच में और कुछ नहीं है। ये करने का वजह से कुछ लोगों का करियर बर्बाद हुआ है। भुज में 2 एनटीसी लोगों का आईडी कुछ महीने का पहले ब्लॉक करना पड़ा कंपनी को, 2 एनटीसी लोगों का, यही चक्कर का वजह से। मिसयूजिंग अदर्स फंड।
इन्हें एक गरीब आदमी को 5-10 हजार रुपया पूरा महीने का रेशन का बिल रहता है, वो आपका विश्वास पे, आपका भरोसे पे उसका जिंदगी बदलेगा करके आपको देता है। आपको दूसरों का पैसा मिसयूज करने का कोई अधिकार नहीं। अगर कंपनी को कंप्लेंट जाएगा, आईडी सीधा ब्लॉक होता है। अगर पुलिस के पास कंप्लेंट जाएगा तो कंपनी का नाम बर्बाद हो सकता है। जो लोग सही तरीके से बिजनेस कर रहे हैं उसका बिजनेस को इफेक्ट हो सकता है, एरिया में बिजनेस खराब हो सकता है। इसके लिए थोड़ा समझदारी के साथ बिजनेस करो फ्रेंड।